Good afternoon, everyone. Today we have with us Yuvraj Singh Alawat, who has been recommended twice, one for NCC special entry, another for CDS IMA entry, and is going to join on 10th of July. The journey of Yuvraj has been very long, very interesting. He has been preparing with me right from his NDA attempt, that is 2020, and it really took almost 4 years, 5 years, 5 years to get into his dream academy, where he has been planning right from NDA, and I'm really proud for him. And the person behind his entire journey was his father, who was who's a professor now in Muzaffarnagar, and he has been really working very hard, more than him. He used to call me on every of his attempts, and you discuss कि सर क्या हो रहा है, युवराज के साथ क्या ऐसा हो रहा है. मैं कहा नहीं सर, युवराज के साथ कोई ऐसी दिक्कत नहीं है. ही इज़ अ वेरी नाइस चैप, वेरी डिसिप्लिन्ड, वेरी डिसेंट एंड हार्ड वर्किंग चैप. बट यस, समटाइम व्हाट यू थिंक एंड व्हाट यू एग्जीक्यूट, दोनों में डिफरेंस हो जाता है. एंड सबसे बड़ा चक्कर होता है हंगर. तो वो कई बार इट रिफ्लेक्ट्स अननोइंगली. ठीक है, ऑल्दो यू डोंट वांटेड टू डू इट, बट it reflects. So that was one of the reason. And but I knew that he will get recommended. बहुत पहले ही मैंने कह दिया था कि भाई you deserve it, you will get recommended, don't worry. But it is a matter of time. And today we are his father is very happy, and he should be happy because he has worked very hard, and he has joined ITBP as an SI, and he was doing his training, and finally he training के साथ once he called me after he was training, he called me and बोला सर ट्रेनिंग में हूँ एंड अब मेरे पास ये अटेम्प्ट बचे हुए हैं. मैं कहा चल कोई बात नहीं, अगर तेरे अंदर इतनी हिम्मत है मेहनत करने की, तो मैं तो फुर्सत में रहता हूँ. तो रात के 2 बजे 4 बजे जब भी तेरे को टाइम मिलता है, यू जस्ट टेस्ट मी, आई विल हेल्प यू आउट. आने की ज़रूरत नहीं है. आई टोल्ड हिम आने की ज़रूरत नहीं है, आने इतना बार आ चुका है. तो ये जस्ट यू नीड व्हाट, जस्ट अ क्लैरिटी एंड यू विल मेक इट. एंड व्हाट्सएप पे फ़ोन पे हम गालियाँ देते रहते थे उसको, एंड इट वर्कड आउट. सो आई लाइक Yuvraj, just to share your journey in a brief. Good afternoon, my name is Yuvraj Singh Alawat and I hail from a village of district Muzaffarnagar of Uttar Pradesh. As sir has already said, my journey has been quite so long. It was beautiful as well, with some great personalities like sir and like some friends I met in SSB. My journey started back in 2020 when I was preparing for NDA. I visited this academy through one of my friend who has just been commissioned, Priyanshu Pandey. Then I came to this academy. My basic problem was communication skills. Then sir helped me while delivering the lecturate, that this should be the way you should deliver your lecturate. पहले introduction, then main part, ऐसे सब कुछ. Then I used to have GDs. Then after NDA attempts I could not get selected. I got conference out. Then after graduation attempts अब मैं दोबारा आया सर के पास. फिर थोड़ी बहुत मेरे से गलती होती थी. सर बोलते थे कि हाँ तू ज़्यादा हंगर में एग्रेशन दिखा रहा है ज़्यादा, ये सब बोलते थे, गालियाँ देते थे. बट आई फेल्ट रियली गुड. सर इतने पर्सनल थे हमारे साथ तैयारी में, और सर कॉल पे भी करते थे हमारे से बात, और वैसे भी करते थे. मतलब ऐसे समझाते थे, सही में एज अ फ्रेंड भी लगते थे सर, एज अ फादर फिगर भी लगते थे. सब कुछ बताते थे. पर मेरा नहीं हुआ. फिर आई थॉट ऑफ जॉइनिंग ITBP ताकि मेरी पर्सनालिटी और इम्प्रूव हो जाए, क्योंकि वो भी डिफेंस फोर्सेस की तरह ही है. फिर आई अगेन इंटरेक्टेड विद सर, बट थ्रू फ़ोन कॉल, बिकॉज आई वॉज इन द ट्रेनिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. दैन सर टोल्ड मी कि अपनी सब भेज, क्या सर क्या क्या तू करके आता है SSB में सब कुछ. सर ने वहाँ से भी मुझे बोलते थे चाहे 2 बजे चाहे 4 बजे मैं रिकॉर्ड करके भेजता था अबाउट माई PPT नरेशन की, क्या करके आया तू, स्क्रीन आउट क्यों हो रहा है, कॉन्फ्रेंस आउट क्यों हो रहा है. फिर भेजता था. सर ने मुझे ग्रुप में ऐड किया, हम डेली गूगल मीट करते थे. दैन अल्टीमेटली आई गॉट रिकमेंडेड फॉर NCC स्पेशल एंट्री फ्रॉम 21 SSB भोपाल. दैन फॉर CDS IMA entry from 17 SSB Bangalore, and in NCC entry I was AIR 88. Then in CDS IMA entry I was AIR 27. Ultimately I cleared CDS OT as well. I got AIR 12 in that. इतने सारे अटैम्प्ट्स, 4-4.5 साल, सब कुछ वर्थ इट लग रहे हैं. बहुत खुशी हो रही है, और यहाँ पे आके ऐसा लग रहा है नॉस्टैल्जिक टाइप सा
कि यहीं पे ही पढ़ते थे, अब यहीं पे ही मैं बता रहा हूँ अपनी सक्सेस स्टोरी। हम सुनते थे सक्सेस स्टोरी जैसे ही बैठ के, जैसे आप सुन रहे हो सब कुछ, और ऐसे डाउट पूछते थे कि हाँ आपने क्या किया था, आपने क्या किया था। तब लगता था कि हाँ मैं कब आऊँगा यहाँ पे ऐसे ही बोलने, बट रियली फीलिंग गुड कि हाँ आज अल्टीमेटली आ गया यहाँ पे, और सर से मिला इतने साल बाद, बहुत अच्छा लगा। बट या इट वॉज हार्ड वर्क, it was blessings of my seniors, my elders, by sir, सबकी blessings थी कि यहाँ हो गया, और efforts तो होते ही हैं। तो this was all about my journey, but yeah, सर के बिना नहीं हो पाता वो सब कुछ। सर ने बहुत कुछ हेल्प की, और मतलब गालियाँ भी देते थे तो ऐसा लगता था कि हाँ हमारे लिए ही दे रहे हैं सर। और सर करवाना चाहते, क्योंकि गालियाँ भी कोई उसको ही देता है कि हाँ जिसे पर्सनली चाहता है कोई कि हाँ वो हो जाए, कि हाँ डिज़र्व करता है। आई वॉज़ वेरी हम्बल सिंस बिगनिंग, और फिर मैं काम करता चला गया, थोड़ा टाइम लगा पर हाँ अल्टीमेटली हो गया। सौरभ सर भी थे मेरे साथ, सर भी थे, हर कोई था, और हर कोई शाम को 7-7 बजे तक हम लगे रहते थे। जीडी हम कहते थे कि सब छुट्टी हो गई, पर मैं कहता था कि सर एक और जीडी कर लेते हैं, एक और कर लेते हैं। जीपी हो गई, सर एक बार और समझा दो। सर समझाते थे, थोड़ी गाली देते थे शुरू में, पर फिर समझाते थे। फिर गाली सर की मुझे पसंद आने लगी थी, द वे ही इज़ टू डिलीवर। तो ऐसे करके हम 3-4 फ्रेंड थे, सब हो गए हम सेलेक्ट, और आज बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ अल्टीमेटली माई ड्रीम, सर्स ड्रीम, माई पेरेंट्स ड्रीम हैज़ बीन फुलफिल्ड। Good. So anybody, if you have any specific question to ask, you can ask, you can discuss if you have any doubts. So people have been preparing hard, and especially those people who have been repeaters, those people who have been repeaters, and you can learn from it. It took 15 attempts, but one right attempt is good enough, right? So don't count the last 14. Count the attempt which you will make it final. That is your first and last attempt, right? बाकी तो अटेम्प्ट आपने कुछ ना कुछ गलतियां करी है, वो जो आप अगर ऐसी ही चीज़ में बताओ ना, रिपीटर्स स्पेशली, यहाँ पे कौन कौन रिपीटर्स है, या तो यू कैन डोंट कंसिडर यूर अ रिपीटर। पहली बात, ये नो रिपीटर इज नेवर अ रिपीटर, इज ऑलवेज अ फ्रेशर, बट इट माइंड सेज आई एम अ रिपीटर। क्यों? बिकॉज जनरली ये मिथ है कि कि रिपीटर को रिपीटर क्या चैलेंजेस आते हैं, बिकॉज यू नो द प्रोसेस, बट एवरीथिंग इज न्यू फॉर्म। वो चेस्ट नंबर नया मिलता है, वो दिन नया है, वो इंटरव्यू ऑफिसर नया है, वो साइकोलॉजी की पिक्चर नहीं है, तो फिर रिपीटर कैसे हो गया भाई? बट वाई दैट यू अनवांटेडली क्रिएट प्रेशर ऑन योरसेल्फ, एंड दैट बिकॉज ऑफ दैट प्रेशर योर परफॉर्मेंस गोज डाउन। ठीक है? सो इफ यू हैव एनीबडी हैव अ स्पेसिफिक क्वेश्चन विद युवराज, यू कैन आस्क एनीबडी। As it's been, He's a very nice chap, but still he has got skin out. since it was a very long journey for you, almost 5 years, so there would have been a lot of obstacles in your life journey, and you would have been discouraged by the failures or the outcomes in which you couldn't make. So how did you manage to have this much patience in your life? Yeah, ultimately everybody has challenges in his or her life, but उन challenges से मतलब ऐसा नहीं सोचना कि हम नहीं होंगे। जस्ट लर्न फ्रॉम दैट challenges. If you have the good reason now for doing anything, that reason will always push you. Always push you. Like in your case, you are from RIMC. You have been in this army background for the last 4 to 5 years. 5 years. तो कुछ नहीं आता होगा अब दिमाग में। अल्टीमेटली डिफेंस फोर्सेस करना ही है। मैं स्क्रीन आउट हुआ, कॉन्फिडेंस आउट हुआ, कुछ गलती की होगी, तब भी हुआ हूँ। जस्ट लर्न फ्रॉम दीज मिस्टेक्स। कम बैक इज़ ऑलवेज स्ट्रॉन्गर। कम बैक हमेशा बहुत अच्छा तगड़ा होता है। मेरे केस में भी यही था। लाइक मेरी डिफेंस फोर्सेस में तो कोई नहीं था, बट माई फादर हैज़ ऑलवेज मोटिवेटेड मी। मेरे रूम में हर जगह डिफेंस 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 हमेशा। और तो और सुबह सुबह लोग आरती चलाते हैं, मेरे घर में बॉर्डर की मूवीज़ के गाने चलते थे और LOC कारगिल के गाने चलते थे। पापा बुलाते थे, मैं पढ़ता था कि आजा नीचे, LOC कारगिल आ रही है टीवी पे, देखते हैं। अब जब ऐसा सब कुछ बैकग्राउंड होगा तो कहाँ कोई सोचेगा कि ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, नहीं होगा तो क्या होगा। फिर पापा ने NCC दिलाई। NCC में अपने सीनियर से बहुत कुछ सीखा, CO से सीखा। CO सर पर्सनली बुलाते थे मुझे कि हाँ मेरे साथ बैठ, क्या दिक्कत आ रही है तुझे। जब इतने सारे हेल्पिंग लोग हों,
इतनी सारी होप्स हो हमारे से, तो हम क्यों अपनी हो पा रहे हैं? हमें भी लगना चाहिए ना। तो लगा रहा मैं पूरा तगड़े से लगा रहा, और मेरे फ्रेंड्स हो रहे थे जो मेरी तरह ही थे, उनसे और होप आई कि हाँ वो भी तो मेरी तरह ही है, वो हो गए तो मैं क्यों नहीं होऊंगा। बस ऐसे होता चला गया। फिर अल्टीमेटली आई जॉइंड ITBP। इसी रीज़न से ज्वाइन किया था कि हाँ मेरा नहीं हो पा रहा, मेरे अंदर कोई कमी होगी। दे रिमूव दैट। कुछ भी हो, डिफेंस फोर्सेज है ना, वो भी आर्म्ड फोर्सेज उसकी टाइप ही है। तो वहाँ जाके भी मैं उनके उसमें माहौल में ढल गया। ऐसे लोग मुझे डिफेंस फोर्स में मिलेंगे, ऐसे लोग वहाँ पे मिल रहे हैं, क्या यहाँ भी मैं सीखूंगा। फिजिकली फिट हुआ, थोड़ा स्टेबल हुआ, जॉब मिल गई, घर वालों की तरफ से थोड़ा प्रेशर कम हुआ, फिर पुश होना शुरू हो गया, हाँ और अच्छा करेंगे। स्क्रीन आउट हुआ FCAT में, कोई बात नहीं, स्क्रीन आउट ही तो हुआ हूँ, कोई इतनी सारी भीड़ आती है, हो जाता है कोई भी। फिर दोबारा से लग गया मैं दोबारा कि हाँ आपकी बात ट्रेनिंग को देखूंगा। दैन उसमें तो और ज़्यादा रिपोर्टिंग हुई थी NCC में, क्लोज टू 250-300 पीपल रिपोर्टेड, विथ 35 पीपल गॉट स्ट्रेंड इन एंड 3 गॉट रिकमेंडेड। हुआ ना तभी तो हुआ क्योंकि मैंने हिम्मत नहीं आ रही, 3 में आ गया। मैंने सोचा अब IM आइटम में तो कम लोग आते हैं, इतने में हो गया, अब इसमें भी हो ही जाऊँगा। इसमें पूरा दम लगा दिया। और FCAT के बाद है ना, इसके पापा ने मुझे कॉल किया, बोला सर गुरुजी क्या हो रहा है इसके साथ, क्यों आउट हो जा रहा है, क्या है? तो मैंने कहा उसको बोलो मेरे से बात करेगा। तो इसने मुझे कॉल किया, तो मैंने क्या हुआ, मैंने छूटते गाली आने शुरू कर दी इसको। मैंने कहा इतने दिन हो गए तेरे को और अभी भी साला ये स्क्रीन और ये कॉन्फ्रेंस लगा हुआ है। मैंने कहा तू मेरे को भेज रहा, क्या क्या गलती कर रहा है। देन वी स्टार्टेड डूइंग ऑनलाइन, एंड देन उसके बाद जब इसके पिताजी का जब फ़ोन आया, सर NCC स्पेशल एंट्री इलाहाबाद गया था ना, भोपाल, तो NCC स्पेशल एंट्री है भोपाल गया, तो इसके पिताजी का फ़ोन आया, बोला सर भोपाल गया, स्क्रीन हो गया। मैंने कहा अब रिकमेंड हो जाएगा, टेंशन मत लो, अभी रिकमेंड हो गया। I was the first person whom I informed after the recommendation. I got recommended. I told sir, sir got recommended. Sir was like, yes, I told you. पता था मुझे साले, पता था। I was literally happy कि हाँ। फिर मैंने पापा को फ़ोन किया, पापा हो गया। पापा वो सिटिंग विद द ग्रुप कैप्टन एट हिंडन एयर बेस। मेरी बहन को मोटिवेट करने के लिए ले गए थे उधर, C-17 को मारे थे, और उनके लिए उस मोमेंट पे ऐसा लगा कि हाँ कुछ हो गया। अल्टीमेटली इतने साल के बाद कुछ खुशी आई घर में। फिर ऐसे ही करके फिर CDS IM आइटम में गया, वहाँ पे भी हो गया। पर सर IMA का तो मेरे पापा का अलग से ही वो था कुछ कनेक्शन, और मेरे साथ भी बन गया। मैं सर 2 साल पहले मेरा कॉलेज का टूर गया था IMA, वहाँ घूम के आया था। जितना सोचता था ना कि IMA ऐसी है, तो और ज़्यादा लग गया कि यार जाना तो इसी अकेडमी में है। सर मनोज पांडे स्विमिंग पूल और चैटवुड बिल्डिंग, उसके अंदर सब कुछ घूमा, कैडेट्स को देखा, सोचता था। और तभी कॉन्फ्रेंस आउट हुआ था उससे 1 महीना पहले, अगर मैं हो जाता तो यहाँ आता। फिर मैंने दोबारा किया, यार अभी मेरे पास अटेम्प्ट तो बचे हुए हैं, करते हैं, किया, फिर अल्टीमेटली हो गया। तो ये ना, जो चीज़ बहुत शिद्दत से पाओ तो मिल जाती है, वो शाहरुख खान का डायलॉग सही है। शिद्दत वाली चीज़ थी, कितने दिन लगा था? 14 अटेम्प्ट। एक और है अभी आएगा 19 अटेम्प्ट वाला, वो भी शिद्दत से लगा है, अभी हो गया, रिकमेंड हो गई है, वो भी रिकमेंड हुआ है। बस शिद्दत तो चाहिए भाई। शिद्दत नहीं होनी चाहिए, अब उसके साथ वो भी होना चाहिए ना, मेहनत होनी चाहिए। गलतियाँ होती हैं, हर गलती को आदमी सीखता है। मेहनत बहुत ज़्यादा मैटर करती है, सब देखते हैं। आसपास वाले लोग जब तुम मेहनत करते हो ना, सपोर्ट करते हैं सब। जब नहीं करता ना कोई मेहनत, तो कोई सपोर्ट नहीं करता। मैं मेहनत कर रहा था तभी सर ने मेरे को फ़ोन किया, नहीं तो किसके पास इतना टाइम है। सर गाली देते थे, कर तू कर, ये कर। आज तूने स्टोरी नहीं भेजी, क्यों नहीं भेजी साले? ऐसे सब कुछ करते करते, हाँ बिज़ी था थोड़ा, शेड्यूल थोड़ा ITBP में बहुत ज़्यादा बिज़ी था। पर मैंने किया, रात को 2-2 बजे जग के, 3-3 बजे जग के, और सुबह को 5 बजे PT होती थी, 2-3 घंटे सोता था। वही था ना दिमाग में जो तूने पूछा कि कभी ऐसे मन नहीं किया कि वो है, नहीं किया भाई। कुछ नहीं किया। वहाँ पे भी देखता था ना मैं ऑफिसर्स की लाइफ ITBP में, या मेरे पास भी चांस है यार बनने का। करता हूँ, चाहे 2-3 घंटे कम सो लूँगा, कोई नहीं, जब हो जाऊँगा 2-3 महीने का टाइम मिला तब सोऊंगा। अब सो रहा हूँ अच्छे से। पर तब नहीं सोया। स्लीपलेस नाइट्स ऑलवेज वर्थ इट। तो ऐसे करके मैं हो गया भाई। ऑल गॉड्स ग्रेस, ऑल ब्लेसिंग्स ऑफ एल्डर्स, ब्लेसिंग्स ऑफ माई लव्ड वंस ऑलवेज, और मेरे एफर्ट्स, सर के एफर्ट्स, पेरेंट्स के एफर्ट्स, सबकी वजह से हो गया। कभी भी हार नहीं माननी, लगे रहना है। नहीं हुआ तो कोई रीज़न था कि नहीं हुआ। ये नहीं सोचना कि यार मैं नहीं हो पा रहा, मैं सब और जा रहे हैं, सब ने अच्छा किया होगा तभी हुए हैं वो।
उनसे पूछो जिसने किया है कि यार मैंने ये गलती की है, तूने क्या किया था। लर्न करते चले जाओ, बस कीप लर्निंग। सीन आउट हुआ है भाई, गलती की होगी, कुछ ना कुछ एनालाइज कर, कुछ तो किया होगा गलती, बस उसके ऊपर काम करना है, सोचना नहीं है, पास्ट को भुला दो, लर्न फ्रॉम दैट एंड गो एट। और कुछ नहीं करना, और हमारे हाथों में कुछ है ही नहीं ना, हमारे हाथों में सिर्फ एफर्ट्स हैं। और बाद में जाके अगर छोटी सी मिस्टेक भी करते हो ना, उसका रिग्रेट होता है, यार उस टाइम पर नहीं सोचना चाहिए था, ये करना चाहिए था। वही बोला ना मैंने स्टोरी में कि काम जो करोगे वो मैटर करता है, चाहे रियल लाइफ में, चाहे स्टोरी में, चाहे कहीं भी, काम करो और कुछ ना सोचो, ये है। Anybody else? So, what are the major reasons or the points that you plan to join the armed forces or you plan to join the IMA? Ultimately, the lifestyle of the people in the armed forces is peerless. You can't find it anywhere. You paid 1,000 lakhs of rupees for adventure, they are providing that. You get motivated by the uniform, they are providing that. You get motivated by the life कि हाँ हार नहीं माननी, ऐसे लोग कहाँ मिलेंगे? You will get in that armed forces. ऐसे लोगों के बीच इतने स्वीट पीपल होते हैं, सिर्फ अपने काम से मतलब, किससे कोई नहीं है। यू गेट इन आर्म्ड फोर्सेस, और सब कुछ तेरा खुद का मोटिवेशन भी। यू कम फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, नेपाल, वहाँ से भी देख ले कितना मोटिवेशन मिलता होगा, सब लोग इतना आर्म्ड फोर्सेस में जाते हैं। हमारे एरिया से भी, मेरठ, मुजफ्फरनगर, ये बागपत, सब आर्मी बेल्ट है, हर कोई, हर दूसरे घर में है। We didn't talk about कारगिल मार्टियर, इनका लड़का Yes, हितेश सर। हितेश सर, you again ना इस जहाँ से है ना हितेश, हमारा मैं मुजफ्फरनगर से हूँ। his father was a कारगिल मार्टियर, His father was a कारगिल मार्टियर, तुम्हें वीडियो मिल जाएगी यूट्यूब पे। बच्चन सिंह। He and his mother are at the stage in one of the videos. Army chief and other chiefs were sitting in the auditorium and they were weeping because of some acclamation his father was getting, and he was commissioned already. मम्मी भी थी। लेफ्टिनेंट हितेश, तो वो हमारी डिस्ट्रिक्ट से ही है, मुजफ्फरनगर से। ऐसे ऐसे लोग हमारी डिस्ट्रिक्ट से हैं, हमारे पड़ोस में ही। सतीश, हवलदार सतीश, वो भी शहीद हुए थे कारगिल वॉर में। तो हमारे एरिया में है ही आर्मी का कुछ अलग से कुछ ना कुछ। कोई आर्मी में नहीं जा पाता तो जाता इनमें ही है, CAPF में जाता है, इन सब कुछ में ही, कि हाँ वो यूनिफॉर्म वाली सर्विसेज चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। जो थोड़ा वो और पुश मारता है वो ऑफिसर भी बन जाता है, बहुत सारे हैं हमारे गांव में खुद हैं। तो ये था मोटिवेशन के लिए ना, अपना खुद का ढूंढो, ये सब कुछ है। और मतलब ऐसी लाइफ कहीं नहीं मिलेगी, तुम्हें चैलेंजेस भी आएंगे ना, पर तुम्हें मज़ा आएगा उसे करते हुए। Good afternoon, everyone. I am Shubham. I hail from Sapla, Rohtak, Haryana, and I am studied for 7 years in Sainik School Kunjpura only, and I've passed out from Sainik School in 2024, and currently I am here for my SSB for NDA entry, and as I have been conferenced out from earlier for 20 SSB Bhopal also. भैया, my question to you is that इतने अटेम्प्ट्स हो जाने के बाद भी वो बस लगे रहने वाली वो जो चीज़ होती है, वो सपोर्ट मिल रहा है, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन वो जो खुद का मन हो जाता है ना अंदर से, वो मन मर जाता है एक टाइम आने के बाद कि भाई बस नहीं हो रहा तो रहने दो यार, छोड़ दो, नहीं हो पाएगा। पर वो चीज़ को टैकल करके जब ऊपर आते हैं तो वो फीलिंग कैसी होती है? वो फीलिंग तो बहुत तगड़ी आती है भाई। जैसे तुमने यूट्यूब वगैरह वीडियोस में भी सुना होगा कि हाँ, जब एनीबॉडी गेट रिकमेंडेड ना, फ्लैशबैक्स आते हैं, सब कुछ है ना, तो आते हैं सही में जैसे वो बोलते हैं ना कि दैट माई टेस्ट नंबर वॉज 29 व्हेन आई गॉट रिकमेंडेड फॉर 21 SSB भोपाल। फर्स्ट टेस्ट नंबर टू बी कॉल्ड वॉज 22, then 28। आई थॉट दैट ये भी कर देंगे। माई कॉन्फिडेंस वॉज वेरी शॉर्ट, देन दे सेड 29। मैं ऐसे बैठा हुआ था, दे सेड 29। आई स्टूड अप कि हाँ मैं हो गया, मुझे लगा हाँ यार हो ही गया। देन the person, Lieutenant Colonel who announced the result ना, he specially said to the entire batch that look at chest number 29. It took him 13 attempts. These 3 people got recommended ultimately ना, उन्होंने बोला, but he has also been the part of the people like you, पहले इसके सामने भी होते थे,
पर इसने काम किया, दैट्स वाई ही स्टैंडिंग राइट नाउ। तभी ये हुआ। मतलब उस पॉइंट पे और ज़्यादा आने लगे कि हाँ यार, इतने अटेम्प्ट्स होने के बाद फिर अप्रिशिएशन यार बहुत ज़्यादा मिलता है, बढ़िया मिलता है, और ऐसा मिलता है सेटिस्फेक्शन कि हाँ इतने अटेम्प्ट्स लगे, दुख हुआ बहुत ज़्यादा हुआ, पर हाँ यार अब बहुत अच्छा लग रहा है। अब मैं पेरेंट्स को बताऊंगा, ये सब बताऊंगा, कितने खुश होंगे सब लोग, कितने खुश। सही में फ्लैशबैक्स आ जाते हैं यार कि हाँ मैं ट्रेन में आता था, जनरल में आता था, पेरेंट्स से पैसे मांगने का मन नहीं करता था यार, थर्ड एसी में गया था, कैसे कहूँ कॉन्फ्रेंस आउट हो गई, थर्ड एसी में ही आऊँगा, जनरल में आ जाता था ऐसे ही बैठ के टीटी से बात करके। और बस खाना ज़्यादा नहीं खाना, मन दुखी होता था कि यार चलो 2-3 दिन होता है, 3-4 दिन होता ही है, घर पे भी मन करता है कि हाँ अकेले बैठे रहें। फिर तीसरे चौथे दिन ना फिर खुद ही दोस्तों से बात करते हुए, चिल करते हुए, हंसी मजाक करते हैं, फिर दोबारा से उसी मोड में ऑन, मिशन मोड कि हाँ यार एक गया दूसरा आएगा, अब दोबारा एसएसबी की प्रिपरेशन करेंगे। हार नहीं मानी मैंने, बहुत अच्छे से चला सब कुछ, बहुत अच्छा मोमेंट था। फिर यहाँ पे आंसू नहीं आए थे, यहाँ पे मेरे शौक लगा था भोपाल में शौक लगा था बहुत ज़्यादा कि हाँ यार हो गया रिकमेंड। फिर हम तीनों ना गले मिलते मिलते फिर डॉक्यूमेंट्स लाए, और वो भी जो और थे वो भी रिपीटर्स थे, हम तीनों रिपीटर्स थे, बहुत अच्छा लग रहा था सही में। फिर प्लस टेस्ट नंबर मिला, उस पर फ़ोटो देखते थे हम कि हाँ प्लस टेस्ट नंबर कुछ होता है, ब्लैक वाला गोल्डन वाला अच्छा लगता है, भोपाल में बहुत चमकता है वो रात को। भोपाल की तो मेरी अलग ही स्टोरी थी सर। आई वॉज 2.5 kg ओवर वेट इन भोपाल, और मेडिसिन मेरा बोन वेट था, वैसा कुछ वेट नहीं था। तो मेडिसिन के डॉक्टर से पैरा वाले, तो उन्होंने कहा तुझे AMB में देंगे। सर AMB नहीं चाहिए, मेरी छुट्टी नहीं मिलेगी ITBP से, मैं इसमें क्लियर करूँगा। देन एक दिन में मैंने 3 kg वज़न घटा दिया था। भागा, पानी नहीं पिया, खाना नहीं खाया, सिर्फ भोपाल में थोड़ा माउंटेनियस है वो, देखा है मोटिवेशन हॉल के सामने ऐसे सब कुछ ऐसे है, फिर बास्केटबॉल ग्राउंड है बराबर में, तो भागता 10-15 राउंड, फिर बास्केटबॉल में जाता, स्प्रिंटिंग मारता, तो भागता स्प्रिंटिंग मारता, पुशअप्स मारता, सेटअप्स मारता। एक रात में शुरू के 3-4 बजे तक मैं यही करता रहा, और फिर बाद में अल्टीमेटली मैं वीक तो हो गया था बहुत, पर मैं 3 kg वेट घट गया था। तो ये मोटिवेशन की बात आ रही है ना, मोटिवेशन से आता है सब कुछ, क्या यार मुझे नहीं आगे ऐसे धक्के खाने, बहुत अटेम्प्ट्स के बाद हुआ है, यहीं क्लियर करके जाऊँगा जो कुछ जाऊँगा। ये हुआ, और भाई फिर बैंगलोर में बहुत ज़्यादा आंसू हुए थे। बैंगलोर में इट वॉज वेरी competitive बैच, with 64 people reported, out of 64 21 were previously recommended, 21, मतलब we were starstruck. They said that how many of you are recommended, everybody of us raised their hand, ये क्या हो रहा है, इन्हें ये बोलना चाहिए कि कौन recommended नहीं है। 21 raised their hand, and out of 21 people 16 PR got recommended, and total 32 got recommended। 32 में से 16 PR थे। एंड उसके बाद हमने नोटिस किया एवरी इवन नंबर वॉज PR, उन्होंने इस तरीके से ही बांटे थे ग्रुप। देन 16 का ग्रुप बनाए इंटरव्यू के, फिर हम 16 थे, हमारे साथ सरदार जी एक इंटरव्यू ऑफिसर थे, सर थे, तो उनके साथ था, एंड अदर 16 वर विद वाइस प्रेसिडेंट। तो आउट ऑफ वी 16 पीपल ओनली 2 गॉट रिकमेंडेड, and out of all 8 PR that were there in the 16, only I got recommended. 7 PR got conference out. And दूसरे ग्रुप में ठीक था, PR हो गए थे, 8 में से 7 हो गए थे, हमारे में उल्टा था, 7 आउट हो गए थे, 1 हुआ था। तो यहाँ दूसरे वाला रिपीटर था, रिपीटर के लिए बोल रहे हो ना, रिपीटर बहुत होते हैं, रिकमेंड बहुत होते हैं। हमारा पूरा बैच रिपीटर्स का था, सारे रिपीटर्स हुए थे, तो देख लो। पर वहाँ आंसू आ गए थे, यहाँ सही में। फर्स्ट चेस्ट नंबर वो 7, सेकेंड चेस्ट नंबर वो 16, दैट वाज मी। वहाँ पे आंसू आ गए थे कि हाँ IMA का ड्रीम देखा था। अब मैं सही में चैटवर्ड हॉल के सामने वाला वो ड्रिल स्क्वायर है ना, ऐसा इमेजिन करा था, मैं वहीं पे खड़ा हूँ। क्या हो गया, हम सारे दोस्त जो रेकमेंड हुए थे ना, अभी बात करते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, यार सही में जो सोचा था वो हो गया, ये था वहाँ पे। तो खूब, फिर मेरा मेडिकल नहीं हुआ था सर, क्योंकि 1 महीना पहले ही मैं मेडिकली फ़िट हो गया था NCC के लिए, मेरा हुआ नहीं था, 6 महीने तक वैलिड होता है वो। फिर मैं 2 दिन बाद ही फिर मैं घर आ गया, फिर मैं आया था फर्स्ट AC से, फिर फर्स्ट AC से आया था, फिर नहीं जनरल से आया। Good. So I believe everybody of you
are motivated by his journey. That is the reason I have especially called him, or he has already committed, sir, मैं आऊँगा जरूर जाने से पहले. And but I know कि once you are recommended, you have or you are going to for joining, you have got lot of commitments, so time निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है. बट yesterday from कल से हम लोग फॉलोअप कर रहे हैं कब पहुँचेगा. कल काफ़ी लेट हो गया था, बट ठीक है, टुडे ही केम. सो आई बिलीव एवरीबडी ऑफ यू आर मोटिवेटेड बाय हिज जर्नी. सो आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड डू वेल. अकेडमी में अच्छा कर, आगे ज़िंदगी में अच्छा कर, एंड गेट वॉट यू ड्रीम, यू नो, as soon as possible. That's what my wish from the Almighty. I want to see in the POP as well. I will come, don't worry. हम देहरादून कोई बहुत दूर नहीं है. I will be coming, don't worry. Okay, thank you. ठीक है.